Hello students, this side Sarika, maths teacher. So in this video, I'm here with the chapter pair of linear equations, which is the third chapter. Pair means there will be two equations. In two variables means there will be two variables, x and y. Right? Unknown variables means whose value changes in every equation. So there will be two equations, and in this chapter we'll have to solve these equations by different methods. So here this is a general linear equation, right? Ax plus by plus c. X and y, they are the variables, right? A, B, C, they are the constants. Constant means the numeric value like 2, 4, 6, 8 numbers, right? And x and y will be the variables. So general linear equation will be of this form. So what are the methods of solving the linear equations? There are different methods like graphical method by plotting the graphs, right? So we can plot the graphs. You might have done in 9th class also, right? Substituting the values of x, we'll be doing the question here. So you can plot the lines, and from the graph also we can find the solution. Second is substitution method. Substitution method में क्या करते हैं हम? We have two equations. एक में से हम x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं, वहां से हमारा y का आंसर आ जाता है. Then again substituting वो y का आंसर हम फर्स्ट वाली में डालते हैं तो x का आ जाता है. So this way we solve for x and y. We will be doing the questions also. Then comes elimination method. In elimination method, we have two equations, right? We try to eliminate one variable. Eliminate means we try to remove, we try to cancel one variable. अगर एक variable cancel हो जाएगा x, तो आप y का आंसर निकाल सकते हो. जब y का आंसर आ गया, then you can substitute the value of y in any of the equation. Then you will be able to find out the value of x. ठीक है? So आप x निकाल सकते हैं. So how to do? I'll be solving a question and I'll be explaining with the help of a question. Then comes cross multiplication method. There is also one method, cross multiplication. हम process में ऐसे multiply करते हैं. So there is a formula. I'll be explaining through the question only. So I hope it's clear. General form of linear equations in two variable is of this form. Like I'll write 2x plus 5y plus 8. These are the variables and these are constants. Constants means numeric value. कोई numbers, right? जिसकी value fixed होती है. So these are the methods. Graphical method, substitution method, elimination method and cross multiplication method. So I'll be explaining them with taking one question, one example. Okay children. So now let us take the questions now. Okay children, now we will do the first method, graphical method, right? So in graphical method we plot the graphs. So before doing these methods we should know how many solutions does these two equations have. So there is a comparison of ratio. What is the comparison? A1, A2, these are the constants, the coefficient, right? Like here I told you AX plus BY plus C is equal to 0. If we have two equations here, A1, B1, C1, A2, B2 and C2, these will be the constants. दो different equations में आपके पास कुछ constants होंगे, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, right? 1, 1, 4. The C is this. So just write this equation in this form, right? Then find out what is the ratio of A1 and upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. So like suppose here it's 2, so 2 by 3, like, so just find out if the ratio is not equal, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, not equals to C1 upon C2, then we will be getting intersecting lines. Intersecting means like this cross. The lines are intersecting at one point. So there will be a unique solution. So these type of equations will have one solution. Unique solution मतलब one solution. तो अगर ये कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उसमें इंटरसेक्टिंग का पॉइंट एक ही होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. सो इन दिस केस वी विल गेट वन सॉल्यूशन. नेक्स्ट सेकंड इज if this ratio is equal throughout, right? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. A1, B1, C1 हम क्वेश्चन से लेंगे, जो भी दिया होगा हमें इक्वेशंस, उसके आगे के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, उनको बोलते हैं. सो रेशियो फाइंड आउट करेंगे और वी फाइंड द रेशियो इज इक्वल. देन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस मींस व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ we get line, one line and the other line is also above this only. एक लाइन और दूसरी लाइन के ऊपर सेम ग्राफ बनता है. सो एक लाइन कोई डिफरेंट लाइन नहीं आती है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर बनती है. देन दोज आर कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. तो उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी सो मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, बिकॉज यहाँ तो देयर वाज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट द लाइन व्हेन इट इज कोइंसाइडिंग, तो एट एवरी पॉइंट इट्स कोइंसाइडिंग.
तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दे आर कोइंसाइडिंग, सो देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस में एक सोल्यूशन नहीं आता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है एवरी पॉइंट पे, क्योंकि ये एक के ऊपर एक लाइन है, सेम ही लाइन है, तो एक के ऊपर एक कोइंसाइड मींस देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देन कम्स द थर्ड केस। थर्ड केस में इफ हाफ इज इक्वल, this ratio is equal to this, but this ratio is not equal to the other one, then we get the parallel lines. Parallel lines आप क्या होते हैं, when you will plot the graph you will get the parallel lines this way or this way, right? So the parallel lines, as you know that they never intersect, right? They go till infinity, parallel ही रहती हैं, उसका point of intersection नहीं आता है. When we don't have the point of intersection, then we don't have the solution also. So in this condition we don't get a solution. So sometimes questions are asked whether it is these two equations have a unique solution, infinitely many solution, or no solution. So they will get unique solution जब intersecting lines होंगी और condition ये होगी, और वो infinitely many solutions होंगे if the lines coincide करेंगी, एक के ऊपर एक होंगी, तो this will be the condition. And if the lines will be parallel, ऐसी condition आएगी तो there will be no solution, and we can't solve these type of questions here, right? Or infinitely also we can't find infinite many points, so we'll be able to solve intersecting lines. We'll find one answer, right? Okay, so now here I have taken one question which I have to solve graphically, right? You might have learned in class 8th or 9th how to draw the graphs. In graphs, what happens, we have our first equation. I have taken this first equation, x plus y equals to 0. So first of all you need to make a box, right? X and y. तो सिंपल वैल्यूज यू कैन सब्स्टिट्यूट x 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं, और इन द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. पर देयर इज अ सिंपल वे. सिंपल वे क्या है, आप x को 0 डाल दो, एक बारी में y को 0 डाल दो और फिर चेक कर लो क्या आंसर आता है आपका. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हियर x 0, तो 0 नहीं होगा उसमें, वी नॉट गेट 0 x, y आ जाएगा 10, और जब y 0 होगा तो y नहीं होगा, x आंसर आ जाएगा 10. आई होप इट्स क्लियर. जब आप x को 0 डालते हैं y 10 आता है, जब y को 0 डालते हैं तो x 10 आता है, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन प्लॉट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट? दिस इज x 0 y 10. x 0 यहाँ होता है और y 10 यहाँ है, दिस पॉइंट, राइट? एंड हियर x is 10 and y is 0. x यहाँ पे 10 है और y x एक्सिस पे 0 होता है. So these are the 2 points and you need to draw the line, straight line with the help of a scale, right? Now second equation is of this type. y इधर x उधर, तो आप इसको x को ला सकते हो लेफ्ट पे. When x comes to the left side, with a change of sign, the equation becomes minus x plus y equals to 4. मैंने x ला दिया इधर. Now do the same thing. Once put x 0, एक बारी y को 0 डाल दो. x को 0 डाला तो x नहीं होगा, वहाँ 0 हो जाएगा, y will be 4. जब y को 0 डाला तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस x की 4 है, तो x माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो x वैल्यू विल बी 4. So these are the points which we have to plot. x 0 और y 4. दिस पॉइंट यहाँ पे y 4 है और x 0 है, क्योंकि x 0 होता है. x is 0 on the y axis and y is 0 on x axis, ठीक है? सो यहाँ पे y 4 है, x 0, दिस पॉइंट. अब now x is -4, y is 0, तो यहाँ पॉइंट होगा -4. पीछे जाना पड़ेगा -2 -4. दिस इज अ पॉइंट. -4 है x and y 0. So we need to join these points with the scale. When you will draw these lines, you will find that there is a point of intersection, right? So that point of intersection gives us the solution. So now just see this point here and below on the x-axis and y-axis. आप dotted line बना लो, यहाँ से 3 और वहाँ से 7, 6, 8 और बीच में 7 था. So ये point जो होगा, पहले हम x लिखते हैं, we write x-axis first, x coordinate को आप पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं. x is 3 and y is 7. So point is 3, 7. It means that when you solve graphically, you got the answer that x is 3, y is 7. हमें ये solution means finding out the values of x and y, right? So when you have one variable, you have to find the value of x. यहाँ पे आपके पास दो variables हैं, you need to find the values of x and y, right children? I hope it's clear. So in order to find out whether we are getting intersecting lines, यानी कि हमारा one solution आ रहा है, तो ये condition होती है, राइट? ये कोइंसिडेंट लाइंस है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन आते हैं. एंड ग्राफिकली हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, राइट? दो इक्वेशंस आपको दी होंगी, जस्ट ड्रॉ द टेबल, ऐसा कुछ बॉक्स आप बना लो, जस्ट टेक 2 वैल्यूज, राइट? इन द जूनियर क्लासेस यूज्ड टू टेक 2-3 वैल्यूज ऑफ x, फिर y की वहाँ पे ढूंढते थे क्वेश्चन से,
कि इक्वेशन से क्या आएगा y का आंसर, देन यूज टू प्लॉट, राइट। नाउ हियर इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, x0 ले लो, y0 ले लो, वहां से देख लो क्या पॉइंट्स आते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। जब आप x को 0 डालेंगे इक्वेशन में तो y क्या आता है, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट y को 0 डालते हैं तो x क्या आता है, तो आपके 2 पॉइंट्स इजीली आ जाते हैं। सिमिलरली आई डिड दिस थिंग फॉर द सेकेंड इक्वेशन, वहां भी ऐसे कर लो, एक बार x को 0 डाल दो, एक को y को, जब x 0 होता है तो y देख लो क्या आता है, then when y is 0 then see what is x. So these are the points which you have to plot, these 4 points. So after plotting these 4 points, प्रूव करें तो ये लाइन आ गई, राइट। सो जब जिसकी जो लाइन होती है, have to write that equation, ये वाली जो लाइन थी ये थी इस इक्वेशन की, this line was of this equation, तो आप उसके साथ वो इक्वेशन भी लिख लो, नहीं तो they will be mixing कि किसकी कौन सी लाइन है। So for clarification, now point of intersection gives us the solution, gives us the value of x and y. उसको x की वैल्यू देख लो, y की देख लो, कहाँ point of intersection. So this way we solve graphically, right? I hope this method is clear. Now you can try other questions, but this way आपका point of intersection आ जाएगा. First you need to check this, right? ये चेक कर लो, अगर आपका यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस है तो सोल्यूशन नहीं आएगा. यू कैन प्लॉट, अगर क्वेश्चन में यू आर गेटिंग इट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और आपका कोइंसिडेंट लाइंस आ रही है तो यू कैन राइट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. फिर हम सोल्यूशंस बताते नहीं है, वी डोंट नो व्हाट आर दोस सोल्यूशंस. एंड व्हेन वी गेट द पैरेलल लाइंस, राइट, सो ग्राफिकली आपको इफ यू नीड टू प्रूव इट तो पैरेलल लाइंस आती हैं तो यू विल राइट दैट देयर इज नो सोल्यूशन, कोई एक्स और वाई की वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि वो क्रॉस नहीं होती है पैरेलल लाइंस. तो सिर्फ एक सोल्यूशन आपका आएगा जब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मींस जब आप रेशियो में इनके कांस्टेंट्स को डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए. सो राइट, नाउ वी विल डू द next method, just which is substitution method. Okay children, after graphical method, now next is substitution method and then elimination method. So I have taken same question, so I'll be solving by substitution and elimination method. You can see the difference, how to solve by substitution method. Okay, now let us do this. Now before doing this, this is an equation which has fractions, so let us simplify this equation. So here taking the LCM, right, so here it will be 2x plus 3y is equal to 6, so it becomes 2x plus 3y is equal to 6 goes there, 6 6 are 36. So this was the first equation. Second equation, right, so we have simplified because second equation was little complicated in terms of fractions, so we have simplified these two equations. Now from the first equation, let us find out the value of x. वो value हम will be substituting in the second one. Okay, let us do that. Now this first one, x minus y is equal to 3. So x will be equals to 3 plus y, right, number 3. Now substitute number 3 in this 2. So now you'll get in place of x, we are substituting 3 plus y plus 3y is equal to 36, right. So it becomes 2 3s are 6, right, 2y 3y is equal to 36. Y, these are the like terms, 2y 3y, that becomes 5y. And 36 minus 6 goes there, 30. So y is equal to 30 divided by 5, that is 6. So y is 6. Now substitute this in 3, right? We have the value of x as 3 plus y. So x will be 3 plus y is 6 and 3, then x will be 9. So answers are x is 9 and y 6, right? I'll repeat this again. As the word says, substitution, you have to substitute, right? So एक equation है जिसमें x और y दोनों हैं, you have to find out value of x from one equation. जो आएगी वैल्यू उसको आप सेकेंड इक्वेशन के x में सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट. सो फर्स्ट वाली थी सेकेंड को थोड़ा सिंपल बना दिया, सो इट बिकेम दिस वन. फर्स्ट वाली में से x निकाला, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, राइट. उस x की वैल्यू को आप सेकेंड वाली इक्वेशन में डाला, उसी फर्स्ट वाली से जहां से आपने x निकाला उसी में ही नहीं डालना है, तब तो जीरो हो जाएगा सब, राइट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, वी सब्स्टिट्यूटेड हियर 2, x की जगह दिस वैल्यू 3 plus y, 3y was there, 36 was there. Accordingly solve as we solve the equations, like terms इकट्ठे करो, उधर 6 को राइट पे लेके जाओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. आफ्टर फाइंडिंग आउट y, x क्या था हमारे पास 3 plus y, तो y की वैल्यू यहाँ डालेंगे, x को यहाँ डालेंगे तो it becomes x becomes 3 plus x 9. So what is the solution of these two equations? वो है that is x is 9 and y is 6. So this is the substitution method. हम substitute करते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरे में, सो दूसरे में से y निकल आता है, उस y की वैल्यू फिर दोबारा वहीं डाल देते हैं फर्स्ट वाले में, तो वहां से x आ जाता है. होप इट्स क्लियर. नाउ सेम क्वेश्चन, हाउ डू वी डू
by elimination method, right? यही सेम है, आंसर सेम आएगा आपका. Now elimination means first step is to simplify this. अब यहाँ simplify करनी है equation, तो I have already simplified here. चलो दोबारा से कर लेते हैं, no problem in that, right? So 6 goes there, it becomes 2x plus 3y is equal to 36. So this was first, this was second. तो first वाली हम इसके नीचे लिखते हैं, right? Elimination means cancelling out x या y. कोई एक one variable you have to eliminate. Eliminate मतलब removing that. So let us do that. If we subtract, right? What happens? ये zero नहीं होगा, ये भी zero नहीं होगा. So we have to multiply any of the equations by any number कि same आ जाए. यहाँ 2x है, we should multiply this whole equation by 2. ठीक है, अगर आप इसको 2 प्रोवाइड कर रहे हो इन ऑर्डर टू ये 0 बनाने के लिए, तो आपको वो 2 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इट इज नॉट द वे दैट यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ओनली वन वेरिएबल. सो नाउ, so this equation becomes 2x minus 2y, right, and is equal to 6. Throughout you have multiplied by 2, 2x, 2y and 6. अब दोबारा ये वाली इक्वेशन नीचे लिखो इसके, राइट? इसकी जो दूसरी इक्वेशन है, हमने इस वाली को मॉडिफाई किया 2 से इनटू करके. अब दोबारा दिस अगेन वी आर राइटिंग हियर. नाउ पुट अ लाइन देयर, राइट? सो नाउ यू हैव टू चेंज द साइंस. ये प्लस प्लस में है दोनों, नहीं तो एड अप हो जाएंगे. तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट मीन चेंजिंग द साइन. ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. सो ये जो सर्कल में है, यू हैव टू सी दीस साइंस. 2x minus 2x is 0. ना यहाँ 0 हो गया. minus 2 minus 3 is minus 5y, right? Here it's 36 minus 30. Why minus? Because 36 is greater. We have to put the sign of greater number. Now here y will be minus 30 upon minus 5. Minus cancels and comes 6. तो y 6 आ गया. Now अगर y 6 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल लो y की वैल्यू, you'll be getting the, हमने फर्स्ट में डाल दी, you can put in second also as you wish, right? So what is the value of y? That is 6. We will find the value of x. 6 goes there and it comes out to be 9. So आपका क्या solution आया? 9 and y is 6. Solution remains same, by which right? You can use any method to find the answer, right? Find the solution. So solution remains same in either of them, right? So now here substitution में एक equation से आपको x substitute करना है. सब x की वैल्यू आपको सेकेंड में डालनी है, फिर अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है. हियर यू हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल. या तो आप x को एलिमिनेट कर दो या y को. यहाँ पे आप y भी एलिमिनेट कर सकते थे. कैसे? देन यू वुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 3. अगर आप यहाँ 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ यहाँ 3 आ जाता, राइट? फिर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आप ऐड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइंस पॉजिटिव नेगेटिव है. यहाँ दोनों के पॉजिटिव थे तो आपको साइन चेंज करना पड़ा. अगर दोनों के ऑपोजिट साइंस है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, देन यू ऐड. तब आप साइंस चेंज नहीं करते. एडिशन में साइंस आर नॉट चेंज, राइट? बट अगर दोनों ही एडिशन है, आपको एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको थ्रू आउट चेंज करना पड़ता है साइन उस इक्वेशन का जिसमें आप सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो. सो दिस वे हमने ये एलिमिनेट कर लिया, क्रॉस हो गया 0. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ y. देन वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट कर लो किसी भी इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो. सो we have discussed graphical method, substitution method, elimination method. You can try the question same way, right children? So basic, these are the basic steps in every question you have to do this way. Now we'll be doing the cross multiplication. Is last method is left. Okay children? Okay now. Okay children, we have done graphical method, substitution method, elimination method. So the now last method, cross multiplication method is left. So this is little complicated, little difficult as compared to the other methods. So whenever you have to solve the problem sums, so elimination or substitution are the best methods, right? So this method is little complicated unless जब तक question में नहीं लिखा है कि solve by cross multiplication, so you should prefer elimination method or substitution method, right? So now how to do this? Cross multiplication means we have to solve it by doing cross multiplications and all. Okay, so I have taken the same question, this, right? Same question for substitution method, same question for elimination, same question for cross multiplication. Okay, how to solve, right? We have general equations ऐसे होती हैं आपके पास, like यहाँ पे 1 है, 1a, a1 is 1, right? Here it's b1, b1 जो भी constant होगा, यहाँ है नहीं, इस केस में 1 है, और ये c है, ठीक है? So what you have to do, you have to write these equations. तो ये उस फॉर्म में लिखूंगी मैं अभी, मतलब कांस्टेंट को आपको लेफ्ट पे लाना पड़ेगा, राइट? मींस अगर ये क्वेश्चन है तो आपको लेफ्ट पे लाके ऐसे लिखना पड़ेगा,
3 राइट पे था, जस्ट ब्रिंग इट टू द लेफ्ट एंड चेंज द साइन। अब यहाँ क्या करना है बेटा, here whenever you have to find the value of x, just hide x को आपको हाइड करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने कॉन्स्टेंट्स, राइट? ऐसे b1 c2 फिर जब आप ऐसे के बाद यू जस्ट टर्न टू दैट साइड, आपको एक माइनस लगाना पड़ता है। देन यहाँ है b2 c1, क्या किया, b1 और c2 को मल्टीप्लाई किया ऐसे क्रॉस और फिर ऐसे क्रॉस, बीच में हम माइनस लगाते हैं, राइट? अब नाउ जब y की टर्न आती है तो y को हाइड कर दो, राइट? सो अब पीछे से उल्टा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, y के बाद आता है c, तो c और ये पहले c1 a2 मल्टीप्लाई होगा, राइट? दिस वे यू पुट माइनस हियर, राइट? देन कम्स c2 a1, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, c1 a2 और फिर माइनस लगता है, फिर ये वाला, राइट? देन व्हेन 1 की यहाँ पे 1 आता है, देन यू हैव टू हाइड द कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, अब आप इसको हाइड करोगे, आप ये कांस्टेंट ये वाले मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट्स a1 b2 और b1 a2, सो हियर इट विल बी a1 एंड b2, माइनस हम लगाते हैं जब ऐसे के बाद आपको ऐसे चेंज करना होता है क्रॉस, सो हियर इट विल a2 b1। आई होप इट्स क्लियर, आई विल रिपीट अगेन। क्या करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होता है, लिटिल लेंथी है, राइट? सो हियर whenever you have to write something below x, so you have to hide x को आप हाइड कर देंगे, आप इन कोफिशिएंट्स जो ये वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 b, फिर माइनस हम लगाते हैं सबके बीच में, राइट? सो b2 c1 दिस वे। सो फिर y की टर्न आती है तो y के लिए पहले हम c लेते हैं, हम c से, ऐसे नहीं करना, ये वाला c1 a2, राइट? क्योंकि उसके बाद c1 आता है ना, देन माइनस a1 c2 a1 a1 c2 मींस द सेम थिंग। देन जब आपको 1 के नीचे कुछ लिखना है तो आप ये कांस्टेंट हाइड कर लो, क्या क्या वेरिएबल्स, a1 b2 माइनस a2 b1, फिर बीच में माइनस लगाते हैं ना, सो दिस वे, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व, पहले आप इतना कर लो, राइट? देन व्हाट यू हैव टू डू, जो x के नीचे आएगा वो मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर करती हूँ ना, व्हाट टू डू नाउ। इसको सिंप्लीफाई करना था हमने, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो हम डूइंग डायरेक्टली, तो एलसीएम लिया था 2x + 3y और उधर चला गया था 36, 6 उधर चला गया था, जो एलसीएम से सॉल्व कर लिया। नाउ राइटिंग देम अगेन, x - y - 3, 3 was on the right side, but in cross multiplication we need 3 on the left side, ऐसी इक्वेशन होती है, राइट पे नहीं चाहिए। ओके, नाउ द सेकंड इक्वेशन इज -36, 36 भी आपका लेफ्ट पे आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे सॉल्व करना है, नाउ x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन 9, व्हेन यू हैव टू फाइंड x, राइट, यू विल बी हाइडिंग दिस x, ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे 1 है तो -1, ऐसे लिख देती हूँ, -1 इंटू -36, बीच में हम माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे 3 इंटू -3, राइट? सो y की टर्न आई तो y के लिए क्या बोला था, उसके आगे c लिखना है पहले, 3 इंटू 2 और फिर हम माइनस लगाते हैं, देन दिस c2 जो कि -36 है इंटू 1, फिर कांस्टेंट वाला हाइड कर लिया आपने, ये कांस्टेंट हाइड हो गया तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3, राइट, माइनस, फिर आप ऐसे को चेंज करते हैं 2 इंटू -1, ठीक है? एक बारी जस्ट पे अटेंशन, राइट? हियर क्या किया, कुछ नहीं, जब x यू हैव टू फाइंड, हाइड कर लो x हाइड किया तो -1 इंटू -36, वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ऐसे के बाद जब ऐसे चेंज करना है तो बीच में एक माइनस लगता है, ऐसा क्या है, +3 या -3 को लगा लिया। सिमिलरली y को हाइड किया, इधर वाला कोफिशिएंट इधर वाला बीच में माइनस, फिर इधर वाले की टर्न आई तो आपको इन दो को इंटू करना है, 1 इंटू 3, 2 इंटू -1, बीच में माइनस लगती है, राइट? नाउ लेट अस डू कि इनके नीचे क्या क्या आंसर्स आते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 36, माइनस या माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दो साइंस है, 3 is 9, सो हियर इट्स बिलो y, व्हाट विल बी, राइट, -3 2 is 6 और ये माइनस माइनस 2 आ जाए तो आपका पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस, राइट? नाउ हियर 3 1 is 3 और ये फिर माइनस माइनस आ गया, फिर प्लस हो गया 2। अब इनके नीचे वाले जो आंसर्स हैं, सो वी आर गेटिंग x अपॉन 45, इनको आप ऐड करेंगे, राइट, इज इक्वल टू y अपॉन, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, वी आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट, सो यहाँ इसके नीचे 30 आ जाएगा एंड 1 अपॉन 5, सो दीज आर द वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो करना था वो मैं यहाँ करती हूँ, मैंने यहाँ लिख के छोड़ा, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको x सॉल्व करना है तो आपको 45 और ये वाला लेना है, ये दोनों को इक्वेट करना है, whenever you have to find x तो आपको इसको और इसको इक्वेट करना है, सो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ, 45 अपॉन 5 दैट इज 9,
सो x आपका 9 आ गया। सिमिलरली जब आपको y सॉल्व करना है तो y के साथ भी ये दोनों लेना है कांस्टेंट वाला, राइट। तो y 30 ऊपर जाता है, डिवाइड बाय y दैट इज 6। सो क्या आंसर्स आए हैं, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6। So we did the same question by substitution method, elimination method and cross multiplication. Same answers आए, x 9 by 6, right? So ये वाला थोड़ा सा lengthy होता है, right? Chances of mistakes increases in this method. So unless it is not asked in the question to get solved by cross multiplication, then avoid this method, right? Elimination से कर लो या substitution से कर लो, right? ये method थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, कहीं पे कुछ रॉन्ग हो गया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो आई एम रिपीटिंग दिस मेथड अगेन। पहले तो फॉर्मूला, एक जनरल इक्वेशन अब जब हम लिखते हैं 1x माइनस 1y माइनस इक्वल टू 0, ये जनरल होती है, उसमें ये कांस्टेंट होता है x, तो ये जनरल वाली हम लिखते हैं, राइट। दोनों लिख लिया हमने, दो इक्वेशन है हमारे पास। सो हाउ टू फाइंड आउट, जब आपने x के नीचे कुछ लिखना है तो आपको x को हाइड करना है, राइट, हाइडिंग द x, राइट। तो व्हेन यू हाइड द x देन you have to find the value, right? Okay, right children, now whenever you have to find what you have to write below x, x के नीचे आपने क्या लिखना है, तो you just hide x, x हाइड करेंगे तो आपके जो कांस्टेंट्स है ये b1 और c2 और b2 और c1 ये मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐसे को टर्न करते हैं तो आप बीच में माइनस लगाते हैं, तीनों के माइनस। सिमिलरली y को टर्न, y की टर्न आई तो y को हाइड कर लो, फिर c1 से स्टार्ट करो, c1 a2 एंड c2 a1। देन अगर 1 के नीचे कुछ लिखना है तो आप कांस्टेंट्स को हाइड कर दो, a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली ये दिस वाज जस्ट द एक्सप्लेनेशन। आपको ये फॉर्मूला वहां नहीं लिखना है पेपर में, आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है। एक बार आपको ये माइंड में बैठ गया देन यू विल बी डूइंग डायरेक्टली, आपको ये नहीं लिखना है वहाँ पे कि जस्ट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग दिस, नो, ये तो जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए थे हम क्या करेंगे इसमें, राइट। सो वी डिड दिस एंड दिस, ये थोड़ी सी इट वाज नॉट इन द सिंपल फॉर्म, वी मेड इट इन द सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में था ये वाला, ठीक है। आफ्टर दिस राइटिंग बोथ इक्वेशंस, ये जो कांस्टेंट्स राइट में थे हमारे, हमने उनको लेफ्ट पे ला दिया बाय द चेंज ऑफ साइन, 3 ला दिया लेफ्ट पे और 36 ला दिया। देन सॉल्विंग, जब आपने x सॉल्व करना है तो आपने x को हाइड कर लेना है, राइट। बचा क्या, -1 इंटू -36, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर +3 इंटू -3, -1 इंटू -36, फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर +3 इंटू -6। अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व कर लो, इसके दो साइंस थे, जस्ट सी द साइंस अकॉर्डिंगली, मल्टीप्लिकेशंस अकॉर्डिंगली, देन यू विल गेट द साइन। सिमिलरली आप y के लिए फिर y वाला हाइड कर लो, फिर -3 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 36, यहाँ से 1, अकॉर्डिंगली। जब ये आगे इनके आंसर्स, देन इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हम x वाले और 1 वाले को सॉल्व करते हैं, इसको इसके सामने लिख लेते हैं, वहां से आंसर आ जाता है x का। अगर आपको y का सॉल्व करना है तो y के साथ भी वो कांस्टेंट वाला ले लेते हैं, y/30 एंड 1/5, 30 वहां जाएगा, यू गेट द आंसर। सो ओके चिल्ड्रन, आई होप दीज मेथड्स आर क्लियर। सो बेसिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन two variables, a pair of linear equations and two variables, is that you have to, how there are the different methods how to solve the variables, means values of x and y, solution of x and y, right, by different methods. graphical method, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्रॉस आता है, अगर क्रॉस आता है तभी आपका उसमें सोल्यूशन आएगा, एक सिंगल यूनिक बोलते हैं जिसको, यूनिक सोल्यूशन। ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड दैट यूनिक सोल्यूशन, राइट। और अगर ग्राफ पैरेलल हो तो उसमें नो सोल्यूशन आता है, अगर ग्राफ एक लाइन बनाई दूसरे की भी उसी के ऊपर आती है, सेम लाइन सेम पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, वो भी सॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि आपको तो एक पॉइंट चाहिए होता है। देन ग्राफिकल मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में व्हाट वी डू, दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में डाल लो, उसी में नहीं डालनी है दोबारा, दूसरी इक्वेशन में डाल लो, जस्ट पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन द अदर इक्वेशन, अदर y, वहां से y का आंसर आ जाएगा, फिर y का आंसर दोबारा फर्स्ट वाली में डाल दो तो x का भी आ जाएगा, राइट। सब्स्टिट्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक इक्वेशन से दूसरे में डालते हैं वेरिएबल, आपका आंसर आ जाता है। देन कम्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में यह है कि आपके दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, एक को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट वो कब होंगे, जैसे 2x है प्लस 3y, नीचे x है तो आपको वो 2x सेम बनाना है या y सेम बनाना है। अगर y सेम बनाना है 3y तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो। अगर आपको 2x है नीचे x है तो आपको नीचे वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करना है, क्यों 2 से, क्योंकि ऊपर 2 है। अगर ऊपर 5x है तो आप 5 से इंटू कर दो। इंटू करने का मतलब है यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स विद 5,
यानी एक के साथ 5 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा नहीं किया, नो, थ्रू आउट जितनी भी टर्म्स है उसमें सब 5 से इंटू होंगी, फिर नई इक्वेशन बनेगी। देन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में आप साइंस चेंज करोगे, अगर उनमें सेम साइन है, ऊपर भी 2x नीचे भी प्लस 2x आ गया, तो फिर वो तो एड अप हो जाएगा, 4 आ जाएगा, वो एलिमिनेट नहीं होगा। देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में हम साइन चेंज करते हैं, फिर नीचे वाली जो इक्वेशन उसके सबके साइंस चेंज हो जाएंगे और वो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका y का आंसर आ जाएगा। y का आंसर आ गया तो दोबारा उसी किसी इक्वेशन में डाल के x का भी निकाल लो, सो यू विल गेट द आंसर। एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 2-3 टाइम्स, राइट। ये फॉर्मूला होता है, राइट, फॉर्मूला वहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है, और अगर यू हैव टू सॉल्व by this method, then only prefer this method, otherwise prefer elimination and substitution, right? So इस तरह से इक्वेशन आती है, हम इनके हाइड कर करके इनको क्रॉसेस करते हैं 4 को, राइट। 4 मीन्स 1, अगर आप ये हाइड कर रहे हो तो 1 2 3 4 उनको क्रॉस करके लिखते हैं, राइट। सो दिस वे वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सो the problem sums I'll be explaining in my next video. Okay, thank you children, stay blessed, right?